ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के सत्र में, भागवत सत्र में। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक संख्या 3 और 4 हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहले श्लोक संख्या 3। जिज्ञासितं सुसंपन्नम् अपि ते महदद्भुतम् कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थ परिबृंहितम्। जिज्ञासितं सुसंपन्नम् अपि ते महदद्भुतम् कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थ परिबृंहितम्। जिज्ञासितं सुसंपन्नम् अपि ते महदद्भुतम् कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थ परिबृंहितम्। जिज्ञासितं सुसंपन्नम् अपि ते महदद्भुतम् कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थ परिबृंहितम्। जिज्ञासितं सुसंपन्नम् अपि ते महदद्भुतम् कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थ परिबृंहितम्। माताजी। जिज्ञासितं सुसंपन्नम् कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थ परिबृंहितम्। So, word-to-word translation and purport by His Divine Grace, Jagadguru Srila Prabhupada. Jagadguru Srila Prabhupada ki Jai. So, Jignasitam, fully inquired, Susampannam, well-versed, Api, in spite of, Te, your, Mahadadbhutam, great and wonderful, Kritavan, prepared, Bharatam, the Mahabharatam, Yahtvam, what you have done, Sarva Artha, including all sequences, Paribrimhitam, elaborately explained. Translation: your inquiries were full and your studies were also well fulfilled, and there is no doubt that you have prepared a great and wonderful work, the Mahabharata, which is full of all kinds of Vedic sequences, elaborately explained. Purport: the despondency of Vyasadeva was certainly not due to his lack of sufficient knowledge, because as a student he had fully inquired about the Vedic literatures
as a result of which the Mahabharata is compiled with full explanation of the Vedas. Om Ajnana-timirandhasya Jnana-jana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri-Gurave Namaha Shri Chaitanya-manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Karaniyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Saharana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Saharana Shri Vishakhanvitamsha Namo Vishnupadaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshakarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gaurapashe He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhyaeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna। तो ये अध्याय जो हम लोग देखेंगे आज इसके तीसरे और चौथे श्लोक में हम लोग आज चर्चा करेंगे। अध्याय 5 जो है एक विशेष अध्याय है और इस अध्याय में आचार्यगण हमें बतलाते हैं दो चीज़ें हैं। तो श्रीधर स्वामी के अनुसार उन्होंने बताया है भावार्थ दीपिका में पंचमे सर्वधर्मेभ्यो हरि कीर्तन गौरवम व्यासचित्त प्रसादाय नारदेनोपदिश्यते। पंचमे यानी इस पंचम अध्याय में 5th चैप्टर में सर्वधर्मेभ्यो हरि कीर्तन गौरव। सर्वधर्मेभ्यो सभी धर्मों से ज़्यादा किसका गौरव है, किसका ज़्यादा सबसे ज़्यादा महात्म्य है? हरि कीर्तन गौरव। तो हरि के कीर्तन का सबसे ज़्यादा गौरव है, इस बात को प्रदर्शित किया गया है। और दूसरी बात ये बतलाते हैं व्यास चित्त प्रसाद आया नारदेन उपदिश्य। व्यास के चित्त को व्यासदेव के मन को प्रसाद करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए नारदेन उपदिश्य थे, नारद मुनि ने उपदेश दिया। तो सर्वधर्मेभ्यो हरि कीर्तन गौरव और व्यास चित्त प्रसाद आया नारदेन उपदिश्य। तो हम लोग श्लोक संख्या 3 और 5 देखेंगे और साथ में हम लोग हरि कीर्तन का गौरव जो है उस पर भी आज चर्चा करेंगे। हरि नाम की क्या महिमा है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और स्पेशली बहुत ही प्रासंगिक है, ये बहुत ही कॉन्टेक्चुअल है क्योंकि अभी ये जो वीक चल रहा है, ये कौन सा वीक चल रहा है? वर्ल्ड होली नेम वीक। तो वर्ल्ड होली नेम वीक जो है स्पेशल है। तो प्रभुपाद की हमेशा से ये आकांक्षा रही थी कि जितने भी लोग हैं इस पूरे दुनिया में, तो वो लोग हरिनाम की महिमा को जानें, हरिनाम को ग्रहण करें और हर प्रकार के धर्म के लोग हरिनाम को लें और अपने जीवन में मंगल लेके आए। तो ये प्रभुपाद की आकांक्षा थी और इसीलिए हम लोग ये पूरा हफ्ता जो है, इस एंटायर वीक इज सेलिब्रेटेड। तो इस वीक में बहुत स्पेशल रहा इस साल का। तो ये हफ्ता जो है, ये वीक जो है, ये शुरू हुआ भक्ति विनोद ठाकुर के अपीयरेंस से और उसके बाद इसमें आया हरिदास ठाकुर का डिसअपीयरेंस और फिर प्रभुपाद का संन्यास ग्रहण करना और विश्वरूप महोत्सव। और ये चलेगा प्रभुपाद अराइवल इन द US, बॉस्टन में जब प्रभुपाद पहली बार पहुँचे तब तक ये चलेगा नेक्स्ट
इस दो दिन और चलेगा। तो ये जो पूरा वीक है वर्ल्ड होली नेम वीक कहलाता है। और प्रभुपाद का जब सेंटेनियल था, जब शताब्दी पूरी हुई प्रभुपाद के प्राकट्य के बाद, तो 1896 में 1896 में प्रभुपाद का आविर्भाव हुआ। और इसीलिए 1996 में गवर्निंग बॉडी कमीशन इस्कॉन की जो सर्वोच्च संस्था है, उन्होंने ये पारित किया, they passed this resolution that this on the occasion of Prabhupada's centennial, the World Holy Name Day should be made an annual program, and the observation of the World Holy Name Day is to be held in connection with the anniversary observations of Srila Prabhupada's arrival in the US on September 17, 1965. तो 17 सितंबर 1965 इस दिन प्रभुपाद गए थे, बॉस्टन में पहुंचे थे। और बहुत ही विशेष महत्व रखता है हम सभी के लिए, क्योंकि इस दिन के कारण ही आज हम लोग इस प्रकार एक साथ यहाँ बैठे हुए हैं। तो बहुत ही विशेष है, इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं। प्रभुपाद की इच्छा रही थी कि सब जगह प्रचार हो, और विशेष रूप से इसीलिए हरिनाम का प्रचार जो है वो भी तो बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि अध्याय भी वैसे ही है और ये जो वीक है ये भी वैसा है। तो हम लोग श्लोक के बारे में देखते हैं, और ये श्लोक से भी कनेक्टेड है। तो नारद मुनि पहुँचे हैं व्यासदेव के पास। नारद मुनि की विशेष रूप से पूजा अर्चना की व्यासदेव ने, ये प्रसंग है। दिस इज द बैकग्राउंड जो कि हमने देखा। और नारद मुनि जब वहाँ पे पहुँचे, और नारद मुनि जब अपने आसन पे बैठ गए, तो थोड़ा मुस्कुराते हुए व्यासदेव से उन्होंने प्रश्न किया। और मुस्कुरा रहे हैं, हमने देखा पिछले 2 श्लोकों में क्यों हल्का सा मुस्कुराए नारद। आज हम लोग देखेंगे नारद मुनि क्या बोल रहे हैं, हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। तो बोलते हैं व्यासदेव को कि जिज्ञासितम सुसंपन्नम अपि ते महदद्भुतम। तो आपने जिज्ञासा की, यू इंक्वायर्ड अबाउट वेरियस थिंग्स, और काफ़ी अच्छे से आपने उसको पूरा भी किया। क्या क्या चीज़ों को पूरा किया? कृतवान भारतम यस्तम, आपने भारत का सृष्टि किया। भारत यानी कि महाभारत यहाँ। तो आपने महाभारत नाम का ग्रंथ जो है इसको लिखा। सर्वार्थ परिब्रह्मितम, सभी प्रकार के अर्थों से परिब्रह्मितम। यहाँ पे आचार्य लोग बतलाते हैं कि अर्थ का मतलब क्या होता है। तो अर्थ यहाँ पे धर्म आदि, तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो महाभारत की जो विषय वस्तु है ये चारों है। धर्म के बारे में है। आप देखिएगा जब भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को बतलाते हैं महाभारत में, अनेक प्रकार के धर्मों के बारे में बताते हैं। राजा का धर्म, स्त्री का धर्म, माता पिता का धर्म। तो ये अनेक प्रकार के धर्मों का निरूपण है महाभारत में। अर्थ, अर्थ यानी कि प्रॉस्पेरिटी। तो धर्म, अर्थ, ये दूसरी चीज़ है। फिर है काम, काम यानी कि डिज़ायर्स, मटेरियल डिज़ायर्स। तो काम के बारे में कैसे मटेरियल डिज़ायर्स को पूरा करना है, अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करना है। और फाइनली जब भौतिक इच्छाओं को पूरा करते करते हमें एहसास हो जाए, हमें ये भान हो जाए इस बात का कि भौतिक इच्छाएं जो है ये लहरों की तरह है, ये कभी रुकती नहीं है। एक लहर आती है, फिर दूसरी लहर आती है, तो लहरों की तरह ये चलती रहती है, तो इसका कोई अंत नहीं है। तो जब इस बात का एहसास हो जाता है जीव को, तब वो मोक्ष के लिए प्रयास करता है। तो चारों चीज़ों का वर्णन किया व्यासदेव ने महाभारत में। लेकिन फिर भी बोलते हैं सर्वार्थ परिप्रीमितम, परिप्रीमितम यानी पूर्णतया, परिपूर्णतम, ऐसा श्रीधर स्वामी बतलाते हैं। तो परिपूर्णतम, पूरी तरह से आपने वर्णन किया है, लेकिन फिर भी आप जो है उदास हैं इतना सब कुछ करने के बाद। तो आगे वाले श्लोक में भी चलेंगे हम लोग, उसके बाद एक साथ ये चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 4। केवल महाभारत ही नहीं, व्यासदेव ने और भी कुछ किया था। श्लोक संख्या 4। जिज्ञासितम अधीतम च ब्रह्म यत्तत् सनातनम तथापि शोचस्यात्मानम् अकृतार्थ इव प्रभो। जिज्ञासितम् अधीतं च ब्रह्म यत्तत् सनातनम्
तथापि सोचस्यात्मानं अकृतार्थ इव प्रभो जिज्ञासितं मधीतं च ब्रह्म यत्तत् सनातनं तथापि सोचस्यात्मानं अकृतार्थ इव प्रभो। Can repeat? जिज्ञासितं अधीतं च ब्रह्म यत्तत् सनातनं तथापि सोचसि आत्मानं अकृतार्थ इव प्रभो। तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखेंगे हम लोग। जिज्ञासितम deliberated fully well, adhitam the knowledge obtained, cha and brahma the absolute, yat what, tat that, sanatanam eternal, tathapi in spite of that, shochasi lamenting, atmanam unto the self, akrita artha undone, iva like prabho my dear sir. Translation by His Divine Grace Srila Prabhupada Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. You have fully delineated the subject of impersonal Brahman as well as the knowledge derived therefrom. Why should you be despondent in spite of all this, thinking that you are undone, my dear Prabhu? Purport: the Vedanta Sutra or Brahma Sutra compiled by Sri Vyasadeva is the full deliberation of the impersonal absolute feature, and it is accepted as the most exalted philosophical exposition in the world. It covers the subject of eternity and the methods are scholarly, so there cannot be any doubt about the transcendental scholarship of Vyasadeva. So why should we lament? तो बहुत ही विशेष चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं नारद मुनि के कहने का जो लहजा है, जो तरीका है, वो देखिए। बोलते हैं कि प्रभो जिज्ञासितम अधीतम च, आपने जिज्ञासा की है और आपने पढ़ाई भी की है इस चीज़ की। ब्रह्म यत्तत् सनातनम, सनातन ब्रह्म जो है, जो इम्पर्सनल ब्रह्म है, जो निर्विशेष ब्रह्म है, उसके बारे में आपने काफ़ी इंक्वायरी किया है और काफ़ी आपने उसके बारे में पढ़ा है। तथापि सोचसी प्रभो, तथापि सोचसी प्रभु, आप तब भी दुखी हैं, तब भी आप उदास हैं। और देखिए क्या बोलते हैं, अकृतार्थ इव प्रभु, अकृतार्थ जिसका कुछ काम नहीं बना, अकृत अर्थ, कृत अर्थ मतलब जिसका काम बन गया, अकृत अर्थ है जिसका काम ही नहीं बना। तो आप तो ऐसे उदास है जैसे आपका कुछ काम ही नहीं बना। तो प्रभो ऐसे करके बोल रहे हैं। तो नारद मुनि इस प्रकार से थोड़ा सरकास्टिकली व्यासदेव से बोल रहे हैं, प्रभु आपने तो सब कुछ कर लिया, आपने तो महाभारत लिख लिया, आपने तो वेदांत सूत्र लिख लिया, ब्रह्म सूत्र लिख लिया, फिर भी आपको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे आपसे कुछ हुआ ही नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं, अकृतार्थ इव, आप ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ किया ही नहीं। इतना सब कुछ करने के बाद इतनी उदासी क्यों आपके अंदर? तो इस प्रकार नारद मुनि का प्रश्न है। तो उदासी है व्यासदेव में, ये चीज़ हमें देखना है। और दूसरा कि व्यासदेव श्री राधा गोविंद देव जी की जय, श्री गौर निताय सुंदर की जय। तो व्यासदेव इतने नॉलेजेबल थे, इतने ज्ञानी थे, फिर भी उदास थे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस कि कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें हम लोग, कितना भी फिलोसफिकली एग्जॉल्टेड हो जाएं, कितने भी विद्वान बन जाएं, शास्त्रों में पारंगत हो जाएं, लेकिन यदि मन में हमें हर्ष चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, आनंद चाहिए, तो ये सब चीज़ों से कार्य जो है हमारा बनेगा नहीं। अकृतार्थ इव रहेंगे हम लोग।
ऐसा लगेगा कि कुछ हमने किया ही नहीं। इतनी मेहनत करने के बाद भी लगेगा कि कुछ किया ही नहीं। इसीलिए शंकराचार्य जो इतना फिलोसफिकल चीज़ें बताएं हम लोग को, शंकराचार्य ने बहुत चीज़ें बतलाई, कितने सारे भाष्य लिखे, भगवत गीता पे भाष्य लिखा, अनेक ग्रंथ लिखे हमें दिए, लेकिन लास्ट में क्या बोलते हैं कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुम क्रिंग करणे। तो फर्स्ट लाइन हम लोगों को जनरली पता है, सेकेंड लाइन पे आज फोकस करेंगे। तो फर्स्ट लाइन बोलते हैं कि भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, 3 बार बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं 3 बार? भज गोविंदम। और 3 बार कहाँ पे हम लोग सुनते हैं? हरे नाम एवं केवलम कलौ नास्ति एव गतिरन्यथा। तो यहाँ भी देखिए शंकराचार्य बोलते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम, 3 बार बोलते हैं। 3 बार क्यों बोलते हैं? तो बताते हैं कि 3 बार बोला जाता है जब आप किसी चीज़ पे एम्फेसाइज करना चाहते हैं। तो राधेश्याम प्रभु एक उदाहरण दे रहे थे, बोल रहे थे कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी माता जो है वो बोलती है दूध वाले को कि देखो दूध वाले, हमारे घर में गेस्ट लोग आ रहे हैं कल, तो कल 1 पैकेट नहीं, कल 4 पैकेट दूध लाना। दूध वाला बोलता है ठीक है। फिर जब दूध वाला अपना दूध देके जाता रहता है तो बोलते हैं कि याद है ना 4 पैकेट दूध लाना है। फिर दूध वाला गया, फिर दूध वाला नीचे से जा रहा है तो इधर गई बालकनी में मम्मी सबकी, और दूध वाले को बोला याद है ना 4 पैकेट। तो इस तरह से प्रभु जी बहुत अच्छे से बता रहे थे कि 3 बार देखिए यहाँ पे बोला गया, इसका मतलब कि बिल्कुल ध्यान रखना है इस बात को। तो शंकराचार्य बोलते हैं कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मती। हे मूढ़मती, हे मूढ़, हे बेवकूफ, तो क्या करो तुम? गोविंद का भजन करो। गोविंद देव देखिए हमारे सामने है, गोविंद का भजन करना है। क्यों? क्योंकि संप्राप्ते सन्निहिते काले, जब तुमको तुम्हारा जब अंत समय आ जाएगा, जब सन्निहिते काले संप्राप्ति, जब सम्यक रूप से उसकी प्राप्ति हो जाएगी, जब बिल्कुल एंड टाइम आ जाएगा, सम्यक रूप से प्राप्ति यानी बिल्कुल लास्ट टाइम, नहीं नहीं रक्षति दुम क्रीम करणे। तो ग्रामर में पाणिनि के ग्रामर सूत्र में पाणिनि के बहुत सारे सूत्र हैं। पाणिनि इज द फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर। तो संस्कृत व्याकरण के पिता के रूप में पाणिनि को जाना जाता है। उन्होंने अलग अलग सूत्र लिखे, उसी में एक सूत्र लिखा है दुम क्रिंग करण। तो दुम क्रिंग करण एक सूत्र है, एक फॉर्मूला है, उसके हिसाब से कुछ संस्कृत के रूल जो हैं वो डिराइव होते हैं। तो बोलते हैं शंकराचार्य बोल रहे हैं, जो कि संस्कृत के सबसे प्रकांड पंडित, वो बोलते हैं नहीं नहीं रक्षति, नहीं रक्षा करेगा तुम्हारा। 2 बार नहीं बोल रहे हैं, नहीं रक्षा करेगा, नहीं रक्षा करेगा। ये संस्कृत ग्रामर स्कॉलरली अप्रोच जो है तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। क्या रक्षा करेगा? भज गोविंदम। अभी भज गोविंदम का मतलब क्या है? भज का मतलब क्या है? पूजा करना। यस, भजन करना। अभी भजन का मतलब क्या है? ठीक है, चैंट द होली नेम्स। यस, भज जो है, भज एक संस्कृत धातु है, तो भज धातु का मतलब है सेवा करना। इसीलिए देखिए प्रभुपाद कभी भी बोलते हैं भजन करना मतलब डिवोशनल सर्विस। ही हैज नेवर ट्रांसलेट इट एज डिवोशन। वो बोलते हैं कि हाँ, भक्ति का मतलब भक्तिमय सेवा। तो भज धातु का मतलब ये सेवा। तो भज गोविंदम यानी गोविंद का सेवा करो। सेवा अनेक तरह से कर सकते हैं हम लोग। भगवान का अच विग्रह का सेवा कर सकते हैं, भगवान के नाम का सेवा कर सकते हैं, भगवान का रूप का दर्शन करके सेवा कर सकते हैं, भगवान को जो फ्लावर्स ऑफर्ड हैं उसका स्मेल लेके सेवा कर सकते हैं, भगवान के तीर्थ स्थलों में जाके भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान की कथा का श्रवण करके सेवा कर सकते हैं, भगवान के भक्तों के चरणों का स्पर्श करके भगवान की सेवा कर सकते हैं, उनकी सेवा करके भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो अनेक प्रकार से ये सेवा जो है कर सकते हैं। तो शंकराचार्य यही बोल रहे हैं कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुम क्रीम कर्ण। तो यही चीज़ व्यासदेव का भी अनुभव रहा। तो व्यासदेव सब कुछ करने के उपरांत भी प्रसन्न
उनके अंदर उल्लास नहीं था और नारद मुनि बिल्कुल अपने शिष्य की सहायता करने के लिए बिल्कुल ठीक समय पे वहाँ पे उपस्थित थे। और क्यों नहीं उल्लास था? क्योंकि उल्लास के स्रोत जो हैं, उल्लास के जो समूह हैं यानी भगवान, उनके बारे में व्यासदेव ने एक्सक्लूसिवली नहीं लिखा था। ऐसा नहीं कि लिखा नहीं था, अनेक पुराणों में व्यासदेव ने लिखा है। पद्म पुराण से हम लोग श्लोक उद्धृत करते हैं और स्कंद पुराण से उद्धृत करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान का उसमें महात्म्य नहीं है, भगवान का काफ़ी महात्म्य है, लेकिन एक्सक्लूसिव महात्म्य जो है, एकांतिक महात्म्य जो है वो नहीं लिखा। तो एकांतिक महात्म्य फिर व्यासदेव ने कहाँ पे लिखा? श्रीमद् भागवत। तो ये जो एकांतिक महात्म्य है, जो एक्सक्लूसिव कृष्ण के बारे में, भगवान का जो एस्पेक्ट है उसके बारे में, जिसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। पूरा का पूरा भागवतम जो है वो एसेंस है, वो रस है, और इसमें रस के बारे में है। तो भगवान जो है रसो वही सहा, हम लोग जानते हैं, ये तैत्तिरीय उपनिषद में आता है कि भगवान ही रस है, भगवान ही अल्टीमेट नेक्टर है। रसम ही एवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। और रस को जब हम लोग इस रस रूपी भगवान की सेवा करते हैं तभी हम लोग ब्लिसफुल रह सकते हैं। तो यही चीज़ समझाने के लिए नारद मुनि जो है यहाँ पे उपस्थित हुए। तो क्या बोलते हैं नारद मुनि इस श्लोक में, श्लोक संख्या 4 में, कि जिज्ञासितम अधितम च ब्रह्म यत्तत् सनातनम। आपने निर्विशेष ब्रह्म के बारे में वेदांत सूत्र में काफ़ी कुछ लिखा। अभी ब्रह्म के बारे में यदि कोई जान जाता है, हम लोग बोलते हैं कि बहुत ही विशेष व्यक्ति हो गया, ब्रह्म ज्ञानी बन गया। हम लोगों ने देखा था ब्राह्मण यानी ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। लेकिन ब्रह्म को जान लेना ही टॉप मोस्ट चीज़ नहीं है, क्योंकि ब्रह्म जो है और भगवान जो है दोनों में अंतर है। हम लोग भगवान के साथ, जैसे हम लोग देखते हैं जो गोप लोग थे और जो भगवान के परिकर हैं, वो लोग भगवान के साथ अनेक प्रकार की लीलाएं कर सकते हैं, भगवान के साथ खेल सकते हैं, भगवान के साथ कंधे पे बैठ सकते हैं, भगवान के साथ भोजन खा सकते हैं। कभी हमने ऐसा इंस्टेंस देखा है शास्त्रों में कि ब्रह्म के साथ ऐसी लीलाएं हो रही हैं? कभी नहीं देखा कि ब्रह्म हमारे साथ खा रहा है, ब्रह्म हमारे साथ लीला कर रहा है, ऐसा नहीं देखते। तो इसीलिए ब्रह्म से श्रेष्ठ है परमात्मा। परमात्मा भी क्या करते हैं? योगी लोग अपने हृदय में परमात्मा का दर्शन करते हैं। लेकिन परमात्मा का आप रोल देखिए, परमात्मा का जो कार्य है, बोलते हैं उपद्रष्टा अनुमंता च, कि वो उपद्रष्टा और अनुमंता के रूप में है। वो वहाँ पे विटनेस के रूप में है और अनुमति देते हैं। तो ये परमात्मा का कार्य है। अभी न्यायाधीश की तरह है, जज की तरह है। आपने अगर कुछ गलत कर्म किया तो सज़ा मिलेगी, क्योंकि परमात्मा विटनेस है, देख रहे हैं कि आप क्या क्या कर रहे हैं। आपने कुछ अच्छा किया तो आपको पुण्य रूप में स्वीकृति मिलेगा। तो ही इज लाइक अ जज। क्या वो माफ़ कर सकते हैं हमारा पाप? नहीं, वो जितना किया है उतना ही देते हैं हमें। माफ़ कौन कर सकता है? क्षमा कौन कर सकता है? न्यायाधीश क्षमा नहीं कर सकता है। न्यायाधीश को जैसा रूल है उसके हिसाब से चलना है। एज पर सेक्शन 388 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, यू आर डिजर्विंग दिस पनिशमेंट, ऐसे करके बोल देगा। तो दफ़ा 302, दफ़ा 305 ऐसे करके वो दफ़ा लगाएगा। लेकिन यस्त्विन्द्र गोपमथवेन्द्र अहो सकर्मा बंधानुरूप फल भाजन मातनोति। यस्तु इंद्र गोपम अहो फल भाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजां गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो इंद्र गोप यानी एक छोटा सा कीड़ा से लेके इंद्र तक सभी लोग अपने कर्म के बंधन के हिसाब से उनको फल मिलता है। लेकिन कर्म करने वाले लोगों के कर्मों को आप निर्दहति यानी पूरी तरह से दहन कर देना, दहन करना मतलब जला देना, ऐसे गोविंद को मैं भजामी, मैं प्रणाम करता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, मैं उनकी भक्ति करता हूँ, ब्रह्मा जी बोलते हैं। तो ये भगवान का एक विशेष चीज़ है। तो इसीलिए नारद मुनि ये जानते हैं कि उनका जो शिष्य है व्यासदेव, ये सेटिस्फाइड नहीं रहेगा, ये संतुष्ट नहीं रहेगा अगर ये केवल ब्रह्म के बारे में विवेचना करेगा, डिस्क्राइब करेगा। इसको हर्षित करने के लिए भगवान का एक्सक्लूसिव वर्णन करना होगा।
और इसीलिए व्यासदेव ने इसी इंस्ट्रक्शन पे आगे जाके हम लोग देखेंगे भागवतम का संकलन किया। तो ये आज का विशेष 2 श्लोक हैं और इसी से संबंधित हम लोग चूँकि देखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी इसी संबंध में पूरे अध्याय 5 के संबंध में बतलाते हैं। अध्याय 5 के शुरू में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, पंचमे ज्ञान कर्मादि वैयर्थयम उपपादयन भक्तिम कीर्तन मुख्यांगम नारदस्तम उपादिशत। तो पंचम में यानी पंचम अध्याय में ज्ञान कर्मादि वैयर्थम उपपादयन, इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि ज्ञान और कर्म जो है उसकी व्यर्थता का प्रतिपादन किया गया है कि दीज आर फ्यूटाइल, इसका कोई लाभ नहीं है। फिर किससे लाभ है? भक्तिम कीर्तन मुख्य अंग, भक्ति और उसमें भी कीर्तन जो उसका मुख्य अंग है उसका प्रतिपादन किया गया, उस विषय का प्रतिपादन किया गया है। और नारद स्तंभ उपादेश, और नारद ने इस प्रकार उपदेश दिया है व्यासदेव को। तो इस थीम के साथ हम लोग देखेंगे एक विशेष नाम महिमा। रूप गोस्वामी क्या बताते हैं नाम के बारे में, तो वी विल लुक एट श्री नामाष्टकम। नामाष्टकम जो है रूप गोस्वामी ने बहुत सुंदर तरीके से 8 श्लोकों में हरिनाम का महिमा जो है उसको बतलाया है। तो हम लोग देखेंगे नामाष्टकम। रूपाद भी बतलाते हैं तात्पर्य में एक जगह कि कैसे ये जो पूरा नामाष्टकम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। नामाष्टकम से पहले हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो नामाष्टकम है हरिनाम के बारे में बतलाता है। तो डिसाइड कर सकते हैं आप लोग, थोड़ा अलग अलग छंदों में है, हर एक जो अष्टक है वो अलग अलग मीटर में है, अलग अलग छंद में है, तो सबका तो रिसाइटेशन थोड़ा डिफरेंट होगा। निखिल श्रुति मौली रत्नमाला द्युति नीराजित पाद पंकजांता, आई मुक्त कुलैरुपास्यमानम् परितस्त्वां हरिनाम संशयामि। तो नाम का महात्म्य देखिए, गोस्वामी पहले श्लोक में बोलते हैं निखिल श्रुति मौली रत्नमाला। निखिल यानी एंटायर, श्रुति यानी जो श्रुति है, वेदास वैदिक लिटरेचर्स। मौली यानी कि मुकुट, चंद्रमौली, चंद्र को जो मुकुट के रूप में धारण करते हैं यानी कि शिव जी। तो निखिल श्रुति मौली, अखिल श्रुति, अखिल वैदिक लिटरेचर का जो मुकुट है, उस मुकुट का जो रत्नमाला है, रत्नों की श्रृंखला है, वो क्या है? उपनिषद। तो जितने उपनिषद है, द्युति नीराजित पाद पंकजांता, तो उसकी जो चमक है वो किस चीज़ के लिए, किसको ग्लोरीफाई करता है? आपके चरण कमलों को। तो पाद पंकज जो है, आपके जो चरण कमल हैं, उसको जितने उपनिषद हैं वो ग्लोरीफाई करते हैं। यानी जितने उपनिषद हैं उसका अल्टीमेट पर्पस क्या है? भगवान के चरण कमलों का ग्लोरिफिकेशन, उसका महात्म्य करना। वेदैश्च सर्वै अहमेव वेदे, अयि मुक्त कुलैर उपास्य माना। तो ये जो नाम है किसके द्वारा उपास्य है, किसके द्वारा उपास्य मान है? मुक्त कुलैर, जो मुक्त कुल हैं, यानी जो मुक्त की श्रेणी में आते हैं, यानी नारद मुनि हो गए, सुखदेव गोस्वामी हो गए, चतुष कुमार हो गए। तो ये नाम, हे नाम, आई एक संबोधन है, जैसे आई नंद तनुजा किंकर,
तो हे नाम, आप तो मुक्त कुलों के द्वारा, मुक्त कुल वाले लोगों के द्वारा उपास्यमान हैं। परितस्त्वाम हरिनाम संश्रयामि। हे हरिनाम, मैं आपका आश्रय ग्रहण करता हूँ। तो ये सर्वत्र भाव से मैं आपका आश्रय ग्रहण करता हूँ। तो ऐसा लोग बोल सकते हैं कि ठीक है, आप तो नाम का महात्म्य बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो पापों से आक्रांत हूँ, मेरे अंदर तो पाप ही पाप हैं। आप तो बोल रहे हैं मुक्त कुलय उपास्यमान, तो मेरे जैसे पापी का क्या होगा? तो उसके संबंध में फिर नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं रूप गोस्वामी। जय नाम ध्येय मुनि वृंद गेय हे, जनरंजनाय परमक्षराकृते, त्वमना त्वमना तरादपि मनागुदीरितम्, निखिलोग्रतापपटलीं विलुम्पसि। तो बोलते हैं कि ठीक है, जो टॉप मोस्ट डिवोटीज हैं उनके लिए तो ठीक है आपका ये, लेकिन मेरे जैसा आदमी जो कि इतना पापी है उसके लिए क्या प्रोविजन है? तो बोलते हैं जय नाम ध्येय मुनि वृंद गेय। ये नाम आपकी जय हो, मुनि वृंद गेय है। मुनि वृंदों के द्वारा, मुनियों के द्वारा जो गाया जाता है नाम। जन रंजनाय परम अक्षराकृति। जन रंजनाय, जनों को, जन यहाँ पे बहुत बार अनुवाद होता है कि नॉर्मल लोगों को, और बहुत बार अनुवाद होता है कि जो भक्त हैं उनको, भक्त जनों को रंजन देता है, यानी कि प्रसन्नता देता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं भगवान का एक नाम क्या है? यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। तो ब्रज के जनों को क्या देते हैं भगवान? रंजन। तो जन रंजनाय, हे जनों को रंजन देने वाले, परम अक्षराकृति, परम अक्षर आकृति। आप जो है परम है, सबसे टॉप मोस्ट है आपका स्थान। त्वम अनादरादपि मनागुदीरितम्। अनादरादपि, अगर अनादर से भी थोड़ा सा भी, मनाग यानी थोड़ा सा, गोपी गीत में त्यज मनाग चना, थोड़ा सा बस। तो मनाग यदि थोड़ा सा भी आपका कोई नाम लेता है, निखिल उग्र ताप पटलीम विलुम्पसि। निखिल यानी सब प्रकार के तापों की जो श्रृंखला है वो विलुम्पसि, लुप्त हो जाती है। तो भगवान का नाम यदि ज्ञानाद अथवा ज्ञानाद, अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद, अज्ञान से लीजिए चाहे ज्ञान से लीजिए। उत्तम श्लोक का नाम है, उत्तम श्लोक का नाम आप आदर पूर्वक लीजिए या अनादर पूर्वक लीजिए, लेकिन क्या होता है उससे, उसका नाम लेने वाले का जितना भी पाप होता है उसको जला देता है। जिस प्रकार आग जो है वो लकड़ी को जला देती है, आग जिस प्रकार ईंधन को जला देती है कुछ भी नहीं बच जाता है, राख बच जाता है, इसी प्रकार नाम जो है सभी प्रकार के पापों को जला देता है। लेकिन यहाँ पे अनादर बोला गया है, लेकिन हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, ठीक है। अनादर यानी जो शुरू के प्रारंभिक अवस्थाएं हैं, जब नाम अपराध होता है, जब हम लोग नाम पे ध्यान नहीं देते। रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं उपदेशामृत में? स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सुकीर्तनादि, नहीं, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप्य विद्या वित्तोपतप्त रसनस्य नरोचिकानि किंत्वादरात् अनुदिनम खलु सैव जुष्टा स्वाद्वी क्रमात् भवति तद्गदमूलः। यहाँ पे बोलते हैं किंतु आदरात् खलु सैव जुष्टम, आदर से उसका ग्रहण करते रहना है। अनादरात यहाँ पे बोला गया है, ये बिगिनर लेवल है, लेकिन नेक्स्ट लेवल क्या है? आदरात। तो नेक्स्ट लेवल है कि नामाभास, ये जो नामाभास हो गया उसके बारे में चलते हैं। तो अभी अपराध युक्त नाम, अभी नामाभास पे चलेंगे। तो नामाभास और उसके बाद उसका कॉन्सिक्वेंस। तो नामाभास जो है नेक्स्ट लेवल है। सबसे पहला कौन सा लेवल है? अपराध युक्त नाम, और उसके बाद नामाभास। तो ये
अलग छंद है, ये शिखरणी छंद है, तो इसको भी रिसाइट कीजिए। यदा भासोऽप्युद्यन् कवलित भवध्वान्त विभवो दृशं तत्त्वान्धानामपि दिशति भक्ति प्रणयिनी जनस्तस्योदात्तं जगति भगवन्नामकरणे कृति ते निर्वक्तुं क इह महिमानं प्रभवति। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं यद आभासो अपि, जिसका आभास भी यानी नाम आभास भी, यानी नाम का आपको आभास हो गया, नामाभास जो सेकंड लेवल है। अपि उद्यन कवलित भवध्वांत विभव, भव का जो तुलना किया जा रहा है, जो भव होता है यानी कि जन्म मृत्यु का जो चक्र होता है, इसको भव बोलते हैं। बार बार पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम, इसी को भव बोलते हैं। तो भव का जो अंधकार है उसको नष्ट कर देता है। जब नाम आभास का उदय होता है तो जन्म मृत्यु का जो चक्र का जो अंधकार है उसको ध्वंस कर देता है। कैसे? कवलित, उसको खा जाता है। ग्रास, कवल यानी कोर, उसको खा जाता है। और क्या होता है? दृशम तत्वान्धाना अपि दिशति भक्ति प्रणय। तो केवल इतना ही नहीं करता है, तत्व अंधानाम, जो तत्व से अंधे लोग हैं, जिनको कुछ नहीं पता है, किसी को कुछ नॉलेज नहीं है, मान लीजिए कुछ ज्ञान नहीं है, ऐसे तत्व अंधे वाले लोगों को भी दृशम दिशति, उसको रास्ता दिखाता है, उसको मार्ग दिखलाता है। इतना ही नहीं करता है, भक्ति प्रणयिनी, यानी भगवान का जो लविंग डिवोशन है, प्रणयी भक्ति, हम लोग बोलते हैं ना, शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल, बोलते हैं उसमें जे सब स्थाने हेरिवो आमी प्रणयी भगत संग। तो भक्ति प्रणयिनी, जो लविंग भक्ति है, उसको ये जागृत कर देता है। यानी नाम हम लोग जो लेते हैं उससे हमारी भक्ति जागृत होती है। जनस्तस्यो दातम जगति भगवत नाम चर तरणे। तो सभी लोगों को, जगत में जितने भी लोग हैं, एलिवेटेड हैं, नीचे हैं, जो भी लोग हैं, उनको ये जो है कृति ते निर्वक्तुम का यह महिमानम प्रभवति। ते कृतिम, आपकी जो महिमा है, आपकी जो महात्म्य है, ये नाम का यह निर्वक्तुम प्रभवति। कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा पंडित है जो आपकी नाम की महिमा को बोल सकता है? हम लोग बस इस पे रिलिश कर सकते हैं, नाम की पूरी पूरी महिमा का बखान कोई नहीं कर सकता है। तो ऐसा रूप गोस्वामी बोलते हैं। तो अभी जो है, अभी हमने क्या देखा? नामाभास, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे, निष्ठापूर्वक नाम लेना। तो बोलते हैं कि निष्ठापूर्वक नाम लेने से क्या होता है? यद ब्रह्म साक्षात् कृति निष्ठयापि विनाशमायाति विना न भोगैः अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। तो यहाँ पे तुलना की जा रही है ब्रह्म साक्षात्कार से, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो यद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि, यदि कोई निष्ठापूर्वक पूरे मनोयोग से पूरा मन लगा के ब्रह्म का साक्षात्कार करे, विनाशमायाति विना न भोगे, तो बाकी सभी चीज़ें वो नष्ट कर देता है। क्या नष्ट कर देता है? कर्म जो है बहुत प्रकार के होते हैं, तो आगे देखिएगा। तो संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। संचित कर्म यानी हमारा जो कर्म है वो जो जमा होते जा रहे हैं। क्रियमाण कर्म जो ऑलरेडी क्रियमाण है, ऑलरेडी जो हमारा चल रहा है। और प्रारब्ध कर्म जो कि जस्ट फलित होने वाला है। तो ये जो ब्रह्म के साक्षात्कार करते हैं लोग, तो जो उसका संचित कर्म है, उनका जो क्रियमाण कर्म है वो नष्ट हो जाता है। लेकिन एक चीज़ नष्ट नहीं होती, जो प्रारब्ध कर्म होते हैं
वो बिना भोग के नष्ट नहीं होता है, उसका भोग करना ही पड़ेगा। बहुत बार हम लोग देखते हैं, हम लोग भक्ति कर रहे हैं और हमें कुछ ऐसा सक्सेस मिल रहा है या भौतिक ऐश्वर्य मिल रहा है जो हम लोग चाहते नहीं। बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि उसके प्राप्त होने से हमारी भक्ति जो है डेविएट हो जाती है। लेकिन बहुत बार वो भी मिल जाता है, क्यों? क्योंकि प्रारब्ध कर्म बचे हुए हैं और हमारी भक्ति उस लेवल पे पहुंची नहीं है कि प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाए। लेकिन यदि नाम का निष्ठा से हम लोग जप करेंगे तो ये जो प्रारब्ध कर्म है ये भी नष्ट हो जाता है। कितनी बड़ी चीज़ है प्रारब्ध कर्म का नष्ट होना। प्रारब्ध कर्मेति विरोधी वेद, ऐसा वेद में कहा गया है। वेद ऐसा बोलते हैं कि हमारा प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो जाता है। तो अभी ये हो गया कर्मों के विषय में, ठीक है, कर्म नष्ट हो गया, सब कुछ हो गया। अभी भक्तों को क्या इससे लाभ होता है? भक्तों के लिए हमारा जो शुद्ध भक्त हैं स्पेशली, उनके लिए नाम किस प्रकार का होता है? तो रूप गोस्वामी एक अन्य जगह पे बोलते हैं कि तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड कदम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्यः स्पृहा चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिं न जाने जनिता कियद्विरंबितये कृष्णेति वर्णं वै। तो ये रूप गोस्वामी का अनुभव है नाम लेने से। बोलते हैं कि तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते, यानी जो मुख में मेरा नाम जब आता है तो ऐसा लगता है कि मेरे हजारों मुख हो जाए। तुंडावली लब्ध है, ऐसा लगता है कि तुंड की अवली हो जाए, श्रृंखला हो जाए। कर्ण क्रोड कदम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्यः स्पृहा, और कानों में जब ये नाम जाता है तो लगता है कि मेरे अर्बुद लाखों करोड़ों कान हो जाए। चेता प्रांगण संगीति विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम, जब चित्त के प्रांगण में, जब हमारे मन में नाम रहता है तो सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम जो है वो नष्ट हो जाती है। जिन सभी इंद्रियों का जो टेंडेंसी होता है, यानी जीभ का जो टेस्ट करने का टेंडेंसी, कान का कुछ अच्छा म्यूजिक सुनने का टेंडेंसी, आँखों का कुछ अच्छा देखने का टेंडेंसी, जीभ का कुछ अच्छा टेस्ट करने का टेंडेंसी और स्पर्श का कुछ अच्छा सॉफ्ट स्पर्श करने का टेंडेंसी, सभी को विजय प्राप्त कर लेता है। यानी कोई सही से नाम जप करेगा तो उसको भौतिक चीज़ें जो है परेशान नहीं करेगी। तो एक अन्य उपमा देते हैं कि कैवल्यम नरकायते कृदशपुर आकाश पुष्पायते दुर्दांत इंद्रिय काल सर्प पटली क्रोधघात दंष्टायते। तो दुर्दांत इंद्रिय काल सर्प पटली, अभी जो इंद्रियों का हमारा समूह है, जो हमारे सेंसेस हैं, उनको तुलना किया गया है काल सर्प पटली, एक काल से सर्प से, एक सांप से कंपेयर किया गया। कैसा सांप? दुर्दांत, बहुत ही डेंजरस विष वाला सांप। तो बोलते हैं यहाँ पे इस श्लोक में कि प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कि दुर्दांत इंद्रिय काल सर्प पटली, ये जो सेंस ग्रेटिफिकेशन का जो सांप है, अगर सांप से दांत निकाल दिए जाए, सांप से अगर दांत आप हटा दें तो सांप कोई डेंजरस रहा? नहीं रहा। उसी प्रकार यदि चैतन्य महाप्रभु की कृपा कटाक्ष हो जाए, नाम में हमारा मन लग जाए, तो फिर इंद्रिय हमको नहीं प्रभावित करेंगे। वो सर्प अभी भी रहेगा, लेकिन वो दंतहीन सर्प हो गया, बिना दांत वाला सांप हो गया। तो क्रोधघात दंष्टायते, जिसका दांत ही दंष्ट यानी दांत, जिसका दांत निकाल दिया गया है वैसा सांप बन गया। तो इसीलिए सर्वात्मा स्नपनम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। तो सभी इंद्रियों के टेंडेंसीज पे ये विजय प्राप्त कर लेता है, और ऐसा रूप गोस्वामी बोलते हैं। तो ये बहुत स्पेशल श्लोक है, इसलिए थोड़ा बैकग्राउंड दिया। बहुत सुंदर मालिनी छंद में ये श्लोक है, तो रिपीट करेंगे हम लोग। अघदमन यशोदानंद नौनंद सुनो कमल नयन गोपी चंद्र वृंदावनेन्द्र प्रणत करुण कृष्णा विद्यनेक स्वरूपे त्वयि मम रतिरुच्चैर्वर्धतां नामधेया। तो ये कितना भक्तों को किस प्रकार का आनंद प्रदान करता है नाम। तो बोलते हैं गोस्वामी यहाँ पे,
भगवान के देखिए नाम है ये सब जो भी हमने रिसाइट किया, ये भगवान के नाम है। तो पहला नाम है अघदमना। अघ कौन है? अघासुर। तो किसका दमन किया भगवान ने? अघासुर का, इसलिए भगवान का नाम है अघदमना। दूसरा नाम क्या है? यशोदानंदन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। तो चूंकि दो नाम है इसीलिए नंदनौ, ऐसा द्विवचन में कहा गया है। तीसरा नाम है नंद सुनो। हे राधे ब्रज देवी के चलनिते, हे नंद सुनो पुकार। तो नंद सुनो यानी नंद के पुत्र। भगवान को बहुत अच्छा लगता है जब उनको यशोदा नंदन बोला जाता है, जब नंद नंदन बोला जाता है, तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। तो कमल नयन, जिनके आँख जो है कमल के पंखुड़ियों के समान चौड़े चौड़े बड़े बड़े हैं। गोपी चंद्र, गोपियों के चंद्रमा के जैसे। तो वृंदावन इंद्र, वृंदावन के जो इंद्र है, वृंदावन के जो राजा है। प्रणत करुण कृष्णौ। तो और दो नाम, प्रणत करुणा, जो प्रणत लोगों पे, प्रणत कामदम जैसे बोलते हैं ना, तो प्रणत यानी जो शरणागत है, जो भगवान के शरणागत है, उस पर भगवान करुणा करते हैं। तो कभी भी हम लोग भगवान पे शरणागत होते हैं तो हमेशा ये होपफुल रहना ही चाहिए कि भगवान करुणा करेंगे, क्योंकि भगवान उस क्वालिटी से डिटर कर ही नहीं सकते। भगवान का एक क्वालिटी है, उपाध्य है, भगवान सरेंडर हो जाएंगे तो करुणा होगी होगी। और फिर नेक्स्ट नाम है कृष्ण। तो ये जो है कृष्णो, ये इति अनेक स्वरूप है, अनेक स्वरूपों में त्वयि मम रति रुचेर वर्धताम नाम। हे नाम प्रभु, त्वयि आप में मम उच्चैर रति वर्धताम, मेरी उच्च रति हो जाए, मेरा मन लग जाए आप में, ये प्रार्थना है। तो बहुत सुंदर ये प्रेयर है। तो हमारी नाम में रुचि हो जाए, अनेक नामों में जो है भगवान के, और इतने सुंदर तरीके से ये बोला गया। तो एक बार और करेंगे ये। अघदमन यशोदा नंदनो नंद सोनो, कमल नयन गोपी चंद्र वृंदावनेन्द्रः। प्रणत करुण कृष्णा विद्यनेक स्वरूपे, त्वयि मम रतिरुच्चैर् वर्धतां नामधेयम्। ये था भगवान के नामों का, अनेक नामों के बारे में। अभी क्विकली थोड़ा हम लोग 3 श्लोक और कर लेते हैं। तो भगवान जो है 2 रूपों में मैनिफेस्ट होते हैं, एक नाम और एक नामी। ठीक है, हम लोग सुने ही। तो यही चीज़ जो हम लोग बोलते हैं ना कि नाम से ज़्यादा दयालु, नामी से ज़्यादा दयालु कौन है? नाम है। तो यही चीज़ है इस श्लोक में। तो ये भी देखते हैं। ये शार्दुल विक्रीडित छंद में है, 19 वर्णों का ये छंद है। वाच्यम वाचकमित्युदेति भवतो नाम स्वरूप द्वयम्, पूर्वस्मात् परमेव हन्त करुणं तत्रापि जानीमहे। यस्तस्मिन् विहितापराधनिवहः प्राणी समन्तात् भवेत्। आस्येनेदमुपास्य सोऽपि सदा नन्दाम्बुधौ मज्जति। तो यहाँ पे बोलते हैं कि वाच्यम वाचकम। वाच्यम यानी जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि भगवान, और वाचकम यानी जिस ऑब्जेक्ट का जो नाम है, यानी भगवान जो हमारे विषय हैं उनका जो नाम है वो वाचकम है। तो इति उदेति भवतो नाम स्वरूप द्वयम्। तो भवता यानी आपका जो है 2 प्रकार से उदय होता है, एक तो नाम और एक आपका स्वरूप। ठीक है। पूर्वस्मात् परम एव हन्त करुणम तत्रापि जानीमहे। तो हे भगवान, हे नाम, मैं जानता हूँ कि पूर्वस्मात् यानी जो
पिछला चीज़ है, यानी जो पहला ऑब्जेक्ट है, जो प्रायर है, यानी कि वाच्यम, यानी आपका जो रूप है, आप जो पर्सनली है, स्वरूप जो है आपका, उससे ज़्यादा करुणा किस में है? वाचकम, यानी आपके नाम में है। तो नेम इज मोर मर्सीफुल। वाई तत्रापि जानी ना है, वो तो मैं जानता हूँ भगवान। क्यों? यस तस्मिन विहिता अपराध निवह प्राणी समन्ता भवे आस्य नेदम उपास्य सोपी ही सदा आनंदम विधो वंचति। तो यदि आपकी सेवा करते करते मेरे से कुछ यदि अपराध हो जाता है, तो भी ये जो नाम है इतना दयालु है कि केवल यदि मैं नाम लेता हूँ, उसकी उपासना करता हूँ, तो भी मैं आनंद समुद्र में डुबकियाँ लगाने लगता हूँ। तो भगवान से अपराध हो जाता है। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। तो हरि स्थाने अपराधे, भगवान के स्थान में अपराध हो जाता है, तो कौन तारगम करता है? हरि नाम। तो दयालु कौन ज़्यादा हो गया? हरि नाम। तो यही चीज़ बतला रहे हैं। तो अभी बोलते हैं कि बहुत प्रकार के नाम अपराध होते हैं और बहुत प्रकार के सेवा अपराध होते हैं। तो 32 प्रकार के सेवा अपराध होते हैं, जो कि भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा हुआ है। और बहुत सारे नाम अपराध भी होते हैं, 10 नाम अपराध, जिसमें से सबसे पहला क्या है? 10 नाम अपराध में ब्लास्फेम द डिवोटीज। तो पद्म पुराण में आता है, सताम निंदा नाम नाम परमम अपराधम वितनुते यतः ख्याति यातम कथम सहते तद विग्रहाम। तो सताम निंदा जो हम लोग बोलते हैं, यानी भक्तों का निंदा जो है, वो जो है सताम निंदा जो है, नाम परमम अपराधम वितनुते, नाम का जो सबसे ज़्यादा अपराध है, सबसे बड़ा अपराध है, परम अपराध, वो क्या है? टू ब्लास्फेम द डिवोटीज हु हैव डेडिकेटेड देयर लाइव्स टू प्रोपेगेट द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। क्यों है ऐसा? सबसे बड़ा अपराध क्यों है? तो नेक्स्ट लाइन में बहुत अच्छे से बताते हैं कि यतः ख्याति यातम कथम उसहते तद विग्रहाम। जिससे ख्याति मिल रहा है नाम को, जिससे फेमस हो रहा है नाम, वो नाम उस व्यक्ति का जो उसको फेमस कर रहा है, उसका अपमान कैसे सह सकता है? सो दैट इज वाई सताम निंदा इज द हाईएस्ट या सबसे ज़्यादा ग्रेवेस्ट ऑफेंस अगेंस्ट द होली नेम। तो सबसे बड़ा नाम होता है। कोई नाम को जिससे प्रसिद्धि मिल रही है, आपको मान लीजिए कोई फेमस कर रहा है, आप चाहेंगे कि उस व्यक्ति का कभी कोई बुराई करे? आप तो बुरा मान जाएंगे। तो उसी तरह नाम भी है, नाम प्रभु, ही इज ऑल्सो हैविंग अ पर्सनैलिटी, ही ऑल्सो हैज फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो मेरे प्रचार करने वाले का ये बुराई कर रहा है, इसको मैं टेस्ट कभी दूंगा ही, गया टेस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो कैसे नष्ट होंगे ये वैष्णव अपराध, ये सेवा अपराध, इवन धामा अपराध? तो उस संबंध में 7वां श्लोक बोलते हैं। सुदिताश्रित जनार्तिराशये रम्य चिद्गण सुख स्वरूपिणे नाम गोकुल महोत्सवायते कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः। देखिए कितना नाम का करुणा है। सूदित आश्रित जन आरतीर आश्रय। सूदित आश्रित, जिसका सब कुछ नष्ट हो गया है, जिसके सब आश्रय जिसका नष्ट हो गया है, ऐसे लोगों का, ऐसे दुखी लोगों का क्या है आप? आश्रय हे नाम प्रभु। रम्य चिद घण सुख स्वरूपिणी, और घण सुख स्वरूपिणी, आपका नाम जो लेता है वो सुखी हो जाता है, क्योंकि आप स्वयं जो है सुख स्वरूप हैं। इसलिए प्रभुपाद क्या बोलते हैं? चैंट एंड बी हैप्पी। नाम गोकुल महोत्सवायते, हे गोकुल महोत्सव। गोकुल महोत्सव कौन है? भगवान यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, तो वही चीज़ है गोकुल महोत्सव। गोकुल को हमेशा महोत्सव प्रदान करते। जैसे भगवान यहाँ पे आए, भगवान के आने से पहले यहाँ पे क्या स्थिति थी, और भगवान के आने के बाद देखिए महोत्सव ही महोत्सव।
अभी और महोत्सव होगा, कार्तिक में अभी सीरीज ऑफ महोत्सव। तो गोकुल महोत्सव, हे गोकुल महोत्सव, आपका जो नाम है कृष्ण पूर्ण वपुषे नमः, आप कृष्ण के ही पूरे शरीर हैं, तो यू आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। तो हे कृष्ण वपु, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। तो अभी लास्ट में 8वें श्लोक में बोलते हैं, नारद वीणो जीवना सुधोर्मि निर्यास माधुरी पूरा, त्वं कृष्ण नाम कामं स्फुर मे रसने रसेन सदा। तो आर्या छंद में है ये। तो नारद वीणा उज्जीवन, तो नारद की वीणा को जो जीवंत कर देता है, लाइवली कर देता है। सुधा उर्मी निर्यास माधुरी पूरा, सुधा यानी कि अमृत, अमृत का जो उर्मी, उर्मी यानी लहरें, उर्मी जो अमृत की जो लहरें हैं, उसका निर्यास, उसका जो एसेंस है, उसका जो सार है, उस माधुरी से भरा हुआ है। यानी कि अमृत का जो लहर है उसका भी सार, उसकी माधुरी से ये नाम भरा हुआ है। लेकिन हमें नहीं समझ में आता है, क्यों? क्योंकि कृष्ण नाम चरितादि सीता अपि अवि, सीता अपि, सीता मतलब मिश्री, तो कृष्ण का नाम और चरित्र जो है मिश्री की तरह है, सीता अपि। लेकिन अविद्या पित्तोपतप्त रसनस्य न रुचिकम, क्योंकि हम लोग अविद्या से ग्रसित हैं। अविद्या किस प्रकार से कंपेयर किया गया है? अविद्या मतलब भगवान के बारे में नहीं जानना, अविद्या मतलब ये मानना कि हम लोग के शरीर है और शरीर को सेटिस्फाई करना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है जीवन का, सेंस ग्रेटिफिकेशन ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। आई एम द एंजॉय, दैट इज नोन एज अविद्या। तो अविद्या पित्तोपतप्त रसनस्य, तो अविद्या रूपी पित्त, पित्त बोलते हैं जॉन्डिस को, जो पीलिया रोग हो जाता है उसको पित्त की बीमारी बोलते हैं आयुर्वेद में। तो ये जो बाइल वाला डिजीज है, उससे जिसका जीव ग्रसित है, रसना यानी कि जीव, पित्तोपतप्त रसनस्य रोचिकनु, ऐसी जीव को टेस्ट नहीं आता है। मिश्री खिलाइएगा उसको, मिश्री का टेस्ट नहीं आएगा। तो मिश्री का टेस्ट नहीं आता है जॉन्डिसाइज्ड पेशेंट को, तो उसको क्या किया जाता है? और मिश्री खिलाओ, डेली खिलाओ, उसको जूस पिलाओ, शुगर केन जूस पिलाओ। उससे क्या होता है? उसका जो जॉन्डिस है वो चला जाता है। उसी प्रकार किंतु आदरात अनुदिनम खलु शैव जुष्टा, आदर पूर्वक यानी बिल्कुल अटेंटिवली डेली हम लोग नाम को लेते रहेंगे, स्वाद्वी क्रमात् भवति, धीरे धीरे टेस्ट आएगा। तद गद मूल हंत्री, गद यानी बीमारी, उस बीमारी का जो जड़ है उसको नष्ट कर देगा। कौन सी बीमारी? अविद्या रूपी पित्त की बीमारी, इग्नोरेंस रूपी जॉन्डिस की बीमारी। तो वही बोलते हैं यहाँ पे, सुधो उर्मी निर्यास माधुरी पूरा, त्वम कृष्ण नाम कामम, हे कृष्ण नाम, त्वम तुम जो हो, क्या करो? सदा में रसने रसेन कामम स्फुरा, सदा में रसने, सदा मेरे रसना पर यानी जिह्वा पर, जैसे हम लोग उसमें देखते हैं गोविंद दामोदर माधवेति में, हे जिह्वा तुम भगवान का नाम लो, ऐसा बोलते हैं बिलमंगल ठाकुर। तो सदा में रसने, सदा मेरे जिह्वा पर क्या करो? कामम स्फुरा रसेन सदा, तो केवल स्फुरित मत हो, लेकिन काम यानी भगवान का जो लव है, भगवान के लव को बहुत बार काम भी बोलते हैं, लेकिन जब भगवान के कॉन्टेक्स्ट में है तो हमें समझना चाहिए कि वो प्रेम है। तो हमेशा भगवान के प्रति जो अटैचमेंट है मुझे दो। क्यों भगवान का अटैचमेंट देता है? हम लोग को पता है, गोलोकेर प्रेम धना हरिनाम संकीर्तन, गोलोक का प्रेम धन है। कैसे गोलोक का प्रेम धन है वो रघुनाथ दास गोस्वामी बताते हैं जब हरिनाम की व्याख्या करते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं, रिपीट कर सकते हैं, एकदा कृष्ण विरहात् ध्यायन्ति प्रिय संगमम मनोवाष्प निरासार्थम जलपतीदम मुहुर्मुहुः। तो रघुनाथ दास गोस्वामी नाम के संबंध में बताते हैं, एक बार क्या हुआ, कृष्ण विरहात्, कृष्ण के विरह से श्रीमती राधा रानी जो है ध्यायन्ति प्रिय संगमम, याद कर रही हैं वो समय जब कृष्ण के साथ थी वो, न कि कृष्ण बगल में भी रहते हैं तो उनको ऐसा लगता है कभी कभार कृष्ण चले गए। दैट इज द काइंड ऑफ
हर absorption in Krishna. तो कृष्ण के विरह से ध्यायन्ति प्रिय संगमम, प्रिय का संगम का ध्यान करते हुए मनोवाष्प निरासार्थम, अपने मन को दुख को दूर करने के लिए क्या कर रही थी? जलपति इदम मुहुर्मुहु, जलपति यानी जल्पना करना, हम लोग बोलते हैं ना प्रजल्प नहीं करना चाहिए, तो प्रजल्प इज अ काइंड ऑफ जल्प, और जल्प यानी बोलना, बार बार बोल रही थी, जल्प कर रही थी। क्या? इदम मुहुर्मुहु यानी बार बार क्या बोल रही थी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राधा रानी बोल रही है हरे कृष्ण महामंत्र। तो क्यों बोल रही है? कृष्ण को याद करते हुए, कृष्ण से जो विरह है उसको दूर करने के लिए, जो ताप हो रहा है कृष्ण के विरह के कारण, उसको दूर करने के लिए राधा रानी ये हरिनाम बोल रही है। दैट इज वाई इट इज गोलोकेर प्रेम धना, गोलोक से ही आया है, ऐसा नहीं कि कोई सामान्य मंत्र है ये चैतन्य महाप्रभु लेके आए और भी स्पेशल बन जाता है, जैसे प्रभु जी आप उस दिन आंसर में बताए थे कि दिस इज मोर स्पेशल बिकॉज चैतन्य महाप्रभु ब्रॉट दिस टू अस। तो ये नाम है, और नाम का महात्म्य हमने आज देखा, इसके इंस्टेंसेस हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं किए, बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, अभी हाल ही में बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं कि नाम का क्या प्रभाव है। बोलते हैं आप नाम सही से ले पाए नहीं ले पाए, लेकिन अगर आप नाम सिंसियरली ले रहे हैं तो उसका बहुत महत्व। जैसे हम लोग को बहुत बार लोग बोलते हैं कि हरे कृष्णा होना चाहिए, लेकिन हम लोग तो हरे कृष्णा बोलते हैं, तो उच्चारण में तो दोष है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब बच्चा माता को पुकारता है तो माता क्या देखती है? भाव देखती है। तो इस बहुत अच्छा श्लोक भी आता है, मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे, उभयोस्तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। भावग्राही जनार्दन आपने सुना, इसी श्लोक का पाठ है। मूर्खो वदति विष्णाया, कि मूर्ख जो है बोलता है विष्णाया, तो विष्णाया गलत है, क्योंकि विष्णु जो है उकारांतक है और कृष्ण जो है अकारांतक है। तो कृष्ण के लिए चतुर्थी विभक्ति कृष्णाया होगा, और विष्णु के लिए क्या होगा? विष्णवे। इसलिए धीरो वदति विष्णवे, जिसको ग्रामर पता है वो बोलेगा विष्णवे। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णाय नमः नहीं बोलेगा, ओम कृष्णाय नमः बोलेगा, है ना। तो हरि हरये नमः कृष्ण यादवाय नमः, वहाँ देखते हैं हरि हरये, हराय नहीं होता है, हराय में शिव जी आ जाएंगे। तो हरि हरये नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय होता है, ये कृष्णाय गोविंदाय तो आय होता है। तो मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णाय, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उभयोस्तु समम पुण्यम, दोनों को समान पुण्य मिलेगा, क्योंकि भावग्राही जनार्दन, क्योंकि भगवान क्या है? तो भाव लेते हैं, तो भावग्राही है। तो इसी संबंध में एक आता है प्रसंग कि एक बार की बात है, विदेश में अमेरिका में एक भक्त थे, भक्त नहीं थे उस समय तो ऐसे ही जा रहे थे, वो तरबूज खा रहे थे, वाटरमेलन खा रहे थे, और वाटरमेलन खाते खाते बगल में ही डस्टबिन था, खाते खाते कुछ तो हुआ, डस्टबिन में वाटरमेलन गिर गया, आधा ही खाया था तो आधा बचा हुआ था वाटरमेलन। तो अभी क्या करेंगे? तो वाटरमेलन को डस्टबिन में से उठाने के लिए हाथ डाला डस्टबिन में, तो वाटरमेलन की जगह आ गया भगवत गीता। तो आश्चर्यचकित थे। विदेश में क्या होता है, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बहुत बार लोगों को पता नहीं रहता कौन सा ग्रंथ है। भारत में तो नो वन विल डेयर टू थ्रो भगवत गीता इन डस्टबिन, लेकिन वहाँ पे ऐसा हुआ। लेकिन भगवत गीता का भी अपना ये था, पर्पस था। तो भगवत गीता उनके हाथ में आई, इन्हें आश्चर्य हो गया कि भगवत गीता हाथ में आ गई। तो लेके चले गए भगवत गीता को अपने घर पे, अच्छा से हाथ वगैरह धो के, पैर वगैरह धो के, उन्होंने सोचा कि अब इस पुस्तक को मैं पढ़ूंगा। पढ़ना शुरू किया, पढ़ने में रुचि आ गई, पढ़ते गए। पढ़ने के दौरान प्रभुपाद ने लिखा है, भगवत गीता में अक्सर लिखते प्रभुपाद की हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाम का जप करना है 108 बार, शुरू में तो ऐसा लिखते हैं। तो उन्होंने 108 बार नाम जप करना शुरू किया। उनको कौन बताए प्रोनाउंसिएशन? तो क्या बोले, हरे का स्पेलिंग क्या होता है? हेयर। हेयर मतलब खरगोश बड़ा वाला, HARE। तो जप करने लगे, हेयर कृष्णा 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 हेयर हेयर, हेयर राम 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 हेयर हेयर। तो ऐसे जप करते गए, और वो धीरे धीरे 108 बार जप कर रहे थे। तो जब करते आगे वाले पृष्ठों पे गए। प्रभुपाद ने बोला 16 राउंड्स, तो 16 राउंड चैंटिंग करने लगे। अब तो
सिंसियरिटी देखिए, नाम का जप करते करते उनमें ये श्रद्धा आ गई, 16 माला जप करने लगे। अभी भगवान ने देखा कि अरे ये भक्त तो बहुत सिंसियर है। और भगवान जब भी देखते हैं कि हम लोग सिंसियर हैं, हमें भक्तों के संग में भेज देते हैं। तो बोले कि अब इसको भक्तों के संग में भेज दूंगा। तो भगवान ने क्या किया, वो एक दिन जा रहा था, उन्होंने देखा कि डिवोटीज लोग ऐसी संकीर्तन में खूब जोर जोर से नाम ले रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोला अरे ये लोग क्या जप रहे हैं, ये लोग हे कृष्णा नहीं बोल रहे, लोग तो हरे कृष्णा बोल रहे हैं। तो इनसे पूछना पड़ेगा कि ये आखिर माजरा क्या है। तो गए वहाँ पे, बोले कि आप लोग ये क्या बोल रहे हैं, इट शुड बी हेयर कृष्णा, आप लोग हरे कृष्णा बोल रहे हैं। तो डिवोटी लोग बोला कि नहीं ये हरे कृष्णा ही है। और फिर उनसे पूछताछ की, पता चला कि अरे इनका ये बैकग्राउंड है। तो बिल्कुल सब डिवोटी लोग खुश, सुपर खुश कि अरे ये ऐसा हो रहा है, ये भक्त 16 राउंड कर रहा है बिना किसी भक्त संग के, केवल भगवत गीता के संग से। बहुत खुशी उनको मंदिर ले गए, उनको एक बड़ा सा प्लेट प्रसादम दिया और प्रसादम को हेड किया इन्होंने। फिर इन भक्त को उन्होंने बताया कि देखिए ये प्रोसेस है, ये विधि है, ये सब बाकी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, आप मंदिर में आ सकते हैं, संघ में आ सकते हैं। और धीरे धीरे इस भक्त ने सब कुछ किया। बिना जब भक्त संघ के उसने इतना कुछ कर लिया, तो भक्त संघ के बाद वो भक्त ने क्या किया होगा, वी कैन जस्ट इमेजिन। तो वो भक्त बिल्कुल सीरियस बन गया, ही बिकेम एन इनिशिएटेड डिवोटी, वेरी एडवांस डिवोटी, और वो भक्त काफ़ी प्रीचिंग कार्य करने लगा। तो दिस इज द पावर ऑफ द चैंटिंग ऑफ द नेम, इवन इफ इट इज चैंटेड विद इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन। बहुत बार लोग बोले कि राम क्यों बोलते हैं, कभी लोग बोलते हैं कि रामो क्यों बोलते हैं, हरे रामो, बंगाली लोग बोलते हैं हरे रामो। तो रामो क्यों है, कुछ भी बोले हम लोग, भावग्राही जनार्दन। दैट इज विद दिस इंस्टेंस, विद दिस एग्जाम्पल। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, समय नहीं है, हम लोग ऑलरेडी एक्सीड कर गए, सैटरडे है तो थोड़ा एक्सीड हो गया। तो यहीं पे हम लोग विराम देंगे। हरिनाम प्रभु की, श्रीमद् भागवतम की, वर्ल्ड होली नेम वीक की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव गौर प्रेमानंद। किसी का कोई पॉइंट या प्रश्न, क्वेश्चन ऑलरेडी एक्सीडेड माय टाइम सर। Hare Krishna Guruji. Thank you very much Guruji for such a wonderful class. Every time whenever we speak, like we hear those points, no? The bona fide Guru. So all those qualities are like reflecting in you. That every point whichever Guru is, whoever is speaking, person who is sitting on Vyasa is speaking, that should be like connected with Shastra, and you give every connection with Shastra you give, and it's a very nice understanding also. And every explanation also it's very clear that we just get the essence, the bhav Krishna Janardana, something bhavgrahi Janardana, yeah. So the point means हमने अभी तक सुना था, that point ऐसा नहीं कि अभी तक नहीं सुना था, but the kind of explanation you give just now, it is very much clear that how that is important, how that Krishna is bhavgrahi Janardana. We understood it very clearly. So Guruji, just I wanted to ask you, so like whenever we are reading a shloka, so we read it and we try to remember it such that we can contemplate on it. But after some time what happens, we also recite some other shlokas and we get connected with that shloka, and this shloka we won't be able to connect again with. So how do you maintain that you are connected with the shlokas which you have read before also and now reading now also, and from long time you will remember all the shlokas and like quote it whenever it is needed? वेरी नाइस क्वेश्चन। तो प्रभु जी ने पूछा है कि समवन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि कैसे हम लोग श्लोकों को याद रख सकें, कि जब भी आवश्यकता हो हम लोग कोट कर सकें, और बाद के जो श्लोक हैं उनके कारण हम लोग पिछले श्लोकों को ना भूलें। तो सबसे पहला चीज़ जो है कि हमें वर्ड टू वर्ड मीनिंग जो है वी शुड रिमेंबर। तो word to word meaning, that's why Prabhupada has so painstakingly wrote the word to word meaning. If we understand word to word meaning, we will not forget the shloka to a large extent. Second, which is very important, the moment you learn a shloka, tell it to 10 people around you. So you
discuss the shloka, you live that shloka, you keep on reflecting on that shloka. And you can reflect on a shloka only when you are knowing the word to word. So reflect each word of the shloka, reflect how it correlates with other things, and you tell your realizations, tell the shlokas meanings to people around you. Always discuss that. आप हमेशा चर्चा करेंगे श्लोक के बारे में अपने साथियों से, अपने फेलो डिवोटी से, तो फिर वो आपके मन में बैठता जाएगा. So and it's practice, Prabhuji. The more you practice, the more you will. Always quote the shloka, but remember the word-to-word meaning. It is very essential. And there are other things also. So maybe we can have a shloka class in which we can see how the shlokas are recited, because each shloka is in a very different meter. उनका recitation का तरीका अलग है. अगर आप एक श्लोक को जिसका मीटर है उसके हिसाब से नहीं रिसाइट करेंगे तो वो फ्लो नहीं आएगा. So that is also one of the ways. So for that we can have maybe some sessions internally for devotees who are interested. That is also. And Prabhuji, like you are having such a clarity over the philosophy. So how it is, Prabhuji? Like what was the like? How did you like read the complete shastras? Like you are quoting from so many different shastras also whenever there is need. So how did you do everything, and how do you maintain your schedule now in this working life, such that you are like very nicely connected with shastra every time? So basically I don't know the scriptures actually. I just take from the acharyas, take from many devotees who have written so many books, many of the lectures, especially Radhesham Prabhu's lectures, and many of the devotees' lectures in the classes. So whatever shlokas I listen, I write it down and memorize those shlokas. So gradually your vocabulary keeps on building, shloka vocabulary keeps on building. And the more you quote them, the more you get to live by those shlokas. You just recollect those shlokas whenever you are free, whenever you are walking, or whenever you are going for, you are traveling in a car. You just, because we don't have anything to occupy our minds many times. So shloka memorization will give you that leverage whenever you are free, whenever your mind is empty. That time you can fill that void with shloka memorization. So that's you can do, and gradually your shloka will keep on building, and you will start correlating the shlokas. With one shloka you will get 3-4 related shlokas later. And Prabhuji, like in my case, that I every day my counselor, he asks me to read the books and do the study and everything. But sometimes I do it, someday I do it, then again I don't do it, telling the reason that I have this service or those service and something else. So how can I remain always connected without giving any reason? Because ऐसा नहीं है कि मतलब I am not understanding कि that is needed. I am understanding, but I am giving reasons कि इसकी वजह से ये नहीं हो रहा है. So how could, like in your life also you are busy with so many things, but still you are connected with Shastra very nicely. So how can I reflect that in my respect? So where there is a will, there is a way. So it just what is our determination? If not for half an hour, maybe for 15 minutes. If not for 15 minutes, maybe for 5 minutes. But that part, at least we should do. At least that feeling should not come to us that we have not been able to do anything in this part, what my counselor has advised me. So, pura time, because of suppose some exigency happens, maybe 5 minutes, maybe 10 minutes. Like in Bhagavad Gita also, Bhagavad Gita के महात्म्य में भी ऐसा बोला गया है कि ये पूरा अध्याय आप पढ़ें, ये ना हो पाए तो आधा अध्याय पढ़ें, ये ना हो पाए तो एक श्लोका पढ़ें, और ये ना हो पाए तो आधा श्लोका पढ़ें. So that is what you can do. Your attachment to your counselor will definitely help. So since you are attached, your love will make you do some things which you never thought you could do. So love is a very powerful force. जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसकी माता जब होती है, उसकी माता का यदि पहला बच्चा होता है तो उसको कुछ अनुभव नहीं रहता बच्चे के बारे में.
बट बच्चे को पालते 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 वो इतने एक्सपर्ट बन जाती है, वो कभी खुद नहीं सोच पाती कि कैसे. तो द बर्डन ऑफ लव जो बोलते हैं, द बर्डन ऑफ लव इज वॉट वी आर कैरिंग एंड दैट विल टेक अस अ लॉन्ग वे. You have an attachment for music, that's why you want to sincerely follow your counselor's instruction. Just try to be sincere in your heart and Krishna will always help you. Thank you very much, Prabhuji. Every time whenever you sit on Vyasasana, you just flame our like that little flame, you blow it very nicely. That we also that fire मतलब वो fire आ जाता है कि हमें भी शास्त्र पढ़ना चाहिए. That we. All glories to Shri Radha. Thank you, Prabhuji. Thank you very much. Hare Krishna. We will stop here. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Radha Party.